webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On these occasions of Ganesh Chaturthi, a very happy Ganesh Chaturthi to all of our customers and all our attendees today. And behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So thank you so much for joining us of today's session. I'm Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. And today we are going to talk about job work in Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's take introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software sales, services, solutions, implementations, and development. So first we deal with the Tally Prime. Tally Prime is the best of your business, a software that bring you to best business management experience, a whole new look and new experience. Second, SAP B1 means SAP Business One, a key of every business solutions. And third one is Bitrix 24. Bitrix 24 is one of the most popular CRM system of the powerful analytics. And fourth one, the Skill India, that is the educations of children. Now coming to the today's topic, that is job work management in Tally Prime. Let's short describe on this topic. A job work refer to manufacturers provide goods to another persons or entry for the processing further. The process of job work applied to during the initial process and completion process. Further, it applied to a intermediate process, assembly, packing, or other complete manufacturing. So now speakers are here. First speaker is Miss Maliha, second speaker Mr. Sahil, and the third person, resource person, Mr. Bhagwati Prasad Gandharia. And now moving ahead to the live presentations. So Miss Maliha, are you here? Yes, ma'am. I'm audible? Yeah. Yes. Welcome to the webinar, Maliha. And Thank you, ma'am. Mr. Sahil, are you here? Yes, ma'am. Yes. Welcome to webinar, Sahil. And Bhagwati sir, are you here? Yeah. I'm available over here. And very good evening, everyone. Thank you. Yes. Good evening, sir. Thank you. So Maliha, over to you for the presentations. You can start. Okay. Ma'am, screen visible hai? Yes. Now visible. Hello everyone. Good evening. Welcome to the Rajlakshmi family. I am Maliha here. First of all, thanks to all the participants for being here today and warm welcome to you all. Our today webinar is on job work in Tally Prime. So first we will see what is job work. Job work means processing or working on raw materials or semi-finished goods supplied by the principal manufacturer to the job worker. This is to complete a part or whole of the process which results in the manufacture or finishing of an article or any other essential operation. The person doing the job work is called job worker. In a simple way, the job work is जब कंपनी कोई भी अपना प्रोडक्ट अपने इन हाउस में ना बनाकर किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है तो हम उसे जॉब वर्क कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ABC कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है और वो अपने इन हाउस में बना रही है. बट कभी कभी क्या होता है, बहुत सी कंपनी अपना होल प्रोडक्ट थर्ड पार्टी से बनवाती है. तो जब वो कंपनी प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी से रेडी होने के लिए देती है और जब वो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है और वो वहां से लेती है, इस प्रोसेस को हम जॉब वर्क प्रोसेस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द जॉब वर्क प्रोसेस. सो द नेक्स्ट इज जॉब वर्क आउट ऑर्डर. व्हाट इज जॉब वर्क आउट ऑर्डर? After deciding the job worker, principal manufacturer raises the job work out order by specifying the details of finished goods to be manufactured and expected quantity of finished goods, raw material to be supplied by the principal manufacturer, date of delivery of raw items, raw materials. So basically job work out order is जब कंपनी जॉब वर्कर
डिसाइड कर लेती है कि हमें ये प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाना है, तो उसके लिए वो एक ऑर्डर पास करती है जिसे हम जॉब वर्क आउट ऑर्डर कहते हैं। अब ये कैसे वर्क होता है, इसमें जो है कुछ सिचुएशन होती है। पहली ये कि थर्ड पार्टी को कंपनी प्रोडक्ट बताती है कि आपको ये प्रोडक्ट जो है रेडी करना है। सेकेंड ये कि थर्ड पार्टी को कंपनी प्रोडक्ट तो बताती है कि आपको ये प्रोडक्ट रेडी करना है, बट साथ ही साथ वो ये बताती है, वो जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और ये जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसकी एक लिस्ट क्रिएट करके वो जॉब वर्क आउट में मेंशन कर देती है। थर्ड सिचुएशन ये होती है कि कंपनी जो है वो ओनली सिर्फ ऑर्डर देती है कि आपको ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो रेडी करना है। ये जो सिचुएशंस है वो जॉब वर्क आउट ऑर्डर में होती है। दिस इज द वे द जॉब वर्क आउट order is worked. So the next is material out. This process will work after the job work out order process. Okay, so what is material out? The material out voucher is used to record the material transfer out. Material out voucher can be used by the job worker as well as principal company. मटेरियल आउट वाउचर यूज्ड होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि कितना मटेरियल जो है प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए ट्रांसफर आउट हुआ है। हाँ, ये मटेरियल आउट वाउचर जो है जॉब वर्कर और प्रिंसिपल दोनों यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल कंपनी एंड जॉब वर्कर इस वाउचर को कैसे यूज कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल कंपनी कैन यूज दिस वाउचर टू ट्रांसफर द रॉ मटेरियल्स टू द जॉब वर्कर, and job worker can use the voucher to transfer the finished goods to the principal company. This voucher can also be used for any other purpose other than the job work. प्रिंसिपल कंपनी जो है वो इस वाउचर को यूज कर सकती है जॉब वर्कर को रॉ मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए, और जॉब वर्कर इस वाउचर को यूज करता है ताकि वो प्रिंसिपल कंपनी को फिनिश गुड ट्रांसफर कर सके। ये जो वाउचर है इसे हम जॉब वर्क के अलावा किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल आउट। आफ्टर मटेरियल आउट द मटेरियल इन प्रोसेस विल बी हैपन। So what is material in? The material in voucher is used to record the material transfer in. Material in voucher can be used by the job worker as well as principal manufacturer. मटेरियल इन वाउचर यूज होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि कितना मटेरियल जो है थर्ड पार्टी से ट्रांसफर इन हुआ है। ये जो मटेरियल इन वाउचर है वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर एंड जॉब वर्कर दोनों भी यूज कर सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर एंड जॉब वर्कर इस वाउचर को कैसे यूज कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कैन यूज दिस वाउचर टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ फिनिश गुड्स और स्क्रैप और प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट from the job worker. In this voucher, principal manufacturer can record the consumption of components used, like consumption like wax, screw, etc. फिनिश गुड के रिसिप्ट को रिकॉर्ड फिनिश गुड के रिसिप्ट को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है वो इस वाउचर को यूज करते हैं। एंड जॉब वर्कर जो है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर से जो रॉ मटेरियल रिसीव होता है उसके अकाउंट के रिसीव मेंटेन करने के लिए जॉब वर्कर इस वाउचर को यूज करते हैं। सो सेम एज मटेरियल आउट, द मटेरियल इन वाउचर भी जो है जॉब वर्क के अलावा किसी भी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल कॉल्ड द मटेरियल इन वाउचर। वेल, in this today's presentation we learned what is job work, what is job work out order, and how material out and material in is used in job work process. Now we will see in live demo how job work is maintained in Tally Prime. So I request to Mr. Sahil to continue the live demonstration. Thank you everyone. Thank you, Maliha. Hello everyone, good evening. Heartily welcome to the Raj Lakshmi family. I am Sahil here. I am going to take a live demonstration on job work. So now let's start the demonstration.
Malia, my screen is visual. Hello, Malia. Yes, it's visible. It's Yes, visible, thank you. Sahil. सो बेसिकली जॉब वर्क प्रोसेस क्या होता है वो अभी मलिया ने आपको पीपीटी के थ्रू दिखाया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जॉब वर्क में यूज होती हैं। उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या एंट्रीज पास करनी पड़ती है टैली में। तो हम टैली में लाइव देखने से पहले एक नॉर्मल जान लेते हैं कि हम अभी टैली में करने क्या वाले, जिससे कि हमें कंपनी का हर एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ कि ये कंपनी जो मैं आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ वो कंपनी कैसे वर्क करती है और क्या चीज़ वो बनाती है, क्या चीज़ थर्ड पार्टी पर्सन को देके बनाने के लिए जो वो सेल करती है। तो इसके लिए जो कंपनी है वो क्या करती है, एक लेडी सूट बनाती है और वो सूट बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल जो है परचेज करती है। रॉ मटेरियल में वो दुपट्टा, सलवार एंड कुर्ती परचेज करती है, कुर्ती का रॉ मटेरियल, और वो भेज देती है जॉब वर्कर। जॉब वर्कर बेसिकली यहाँ पे जो है वो टेलर है, वो क्या करता है उस चीज को स्टिचिंग करके सिल कर वो वापस कंपनी को वापस कर देता है और कंपनी उसको सेल करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं। पहले में क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे, वहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में यहाँ पे हमें जो भी रॉ मटेरियल मंगाना है, जो भी रॉ मटेरियल हमें यूज होता है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो जो हमें यूज होने हैं वो है दुपट्टा, कुर्ती, लेडी शूट, जो हमारा फिनिश गुड है, और जो हमारा सलवार है वो हमारा रॉ मटेरियल है। तो जो दुपट्टा है उसको मैंने क्रिएट कर रखा है रॉ मटेरियल में। इसके लिए हमारे लिए रॉ मटेरियल हम इसको परचेज करते हैं और जॉब वर्कर को देते हैं ताकि वो उसको कन्वर्ट करके एक प्रॉपर शूट में तैयार करके हमें देता है। दुपट्टा को रॉ मटेरियल में रख रखा है और यहाँ पे हमने दे रखा है एक अल्टरनेट यूनिट यूज कर रखा है। बेसिकली जो दुपट्टा है वो पीसेस वाइज होता है, एक शूट में एक पीस लगेगा, बट उसका जो लेंथ है, क्योंकि जो हमारा स्टॉक आइटम है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो उसका फैब्रिक आता है वो हमारा मीटर में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको डिफाइन कर रखा है कि अगर हमारा दुपट्टा एक पीस है तो एक पीस में 2.50 मीटर लगता है बनने के लिए। सेम ऐसे ही मैंने कुर्ती क्रिएट कर रखा है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, कुर्ती का स्टॉक आइटम सेम रॉ मटेरियल में रख रखा है। रॉ मटेरियल में रखने के बाद उसका भी हमने डिफाइन कर रखा है कि एक कुर्ती नॉर्मल बनने के लिए, एक पीस बनने के लिए 2 मीटर का कपड़ा लगता है, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल आने वाला, जो हमारा फैब्रिक आने वाला है वो मीटर में आता है। देन नेक्स्ट हमारा जो फिनिश गुड है लेडी शूट, उसको हमने फिनिश गुड ग्रुप में रख रखा है। फिनिश गुड में इसमें क्या है कि इसमें जो शूट बनेगा वो आपका प्रॉपर एक रेडी पीस में ही रहेगा, मतलब यूनिट जो उसका रहेगा वो पीसेस में, उसमें कोई भी अल्टरनेट यूनिट पीछे मीटर और ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए हमने इसको सिर्फ पीसेस में दे रखा है। जो आपका स्टॉक आइटम क्रिएट होने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि हमें जितने भी स्टॉक, जितना भी रॉ मटेरियल हमें लगना है वो हमें परचेज करना है। अभी क्या है कि हम इसको परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद जो भी हमारा जॉब वर्कर है उसको हम सेल करेंगे, सॉरी सेल नहीं, हम उसको देंगे वो मटेरियल रेडी करने के लिए, हमारा फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक वेंडर क्रिएट कर लेते हैं, एबीसी क्रेडिटर। ये क्या है, इससे हम अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। ये जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में, मेंटेन बिल वाइज यस कर देंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी नीडेड है हमें वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ये हमारा वेंडर बना जिससे हम परचेज करते हैं सारी चीजें। अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले परचेज की एंट्री पास करेंगे। वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाके F9 प्रेस करेंगे। अगर आपका परचेज का वाउचर नहीं ओपन है तो आप F9 प्रेस कीजिएगा, परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे हम वो पार्टी सेलेक्ट करेंगे जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं। एबीसी क्रेडिटर हमारा पार्टी है जिससे हम सर अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। ये सब उसकी पार्टी की प्रॉपर डिटेल है जो हमने लेजर के क्रिएट के टाइम हमने एंटर कर रखी थी, और यहाँ पे हमारा आएगा। देन उसके बाद वो पूछेगा परचेज लेजर। लेजर ये एक्चुअली क्या है कि टैली का एक फीचर है जिसमें लेजर आपको डिफाइन करना पड़ता है। वो आपका एक परचेज लेजर आप क्रिएट कर लीजिएगा परचेज के अंदर और उसको हम वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है स्टॉक आइटम, क्या क्या मैं परचेज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल जो है दुपट्टा है। दुपट्टा हमने परचेज किया है अपने मेन लोकेशन में, क्वांटिटी 500 मीटर और उसका रेट जो है 40 रुपये हमने दे रखा है कि पर मीटर 40 रुपीज़ है। सेकंड जो है वो है हमारा कुर्ती, ये हमने परचेज कर रखा है मेन लोकेशन में और 500 ये भी।
रेट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी आपका रेट वहां पे रहेगा। थर्ड जो हमारा है वो है सलवार। ये भी हमने 500। ये हमारा आइटम सिलेक्शन हो गया। अब देन उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो टैक्स लगता है वो लगाएंगे, CGST, SGST। ये भी हम नो कर देंगे। अभी ये हमने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब हम इसको सबसे पहले रिपोर्ट में देखेंगे, गोडाउन वाइज रिपोर्ट में, कि कितना हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना हमारे गोडाउन में है। ये सब चेक करने के लिए आप स्टॉक समरी के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रॉ मटेरियल में कितनी चीजें हैं, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना दिख रहा है। यहाँ पे F12 कीजिएगा। F12 करने के बाद ओपनिंग, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। और डिटेल में चेक करना तो हम डिटेल में भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना स्टॉक हमारे पास कौन से गोडाउन में है। अभी हमने मेन लोकेशन में परचेज किया था। मेन लोकेशन में आप देखिएगा तो इनवर्ड जो हमारा था वो टोटल है 1500। एक्चुअली इसमें ऑलरेडी मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, इसलिए वो आपको इतना ज्यादा दिखा रहा है। हम इसको गोडाउन वाइज भी चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ पे गोडाउन हम अपना प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन लोकेशन में हम रॉ मटेरियल चेक कर सकते हैं। ये इसके लिए हमारा गोडाउन वाइज समरी दिखा रहा है कि कितना हमारा स्टॉक है। ये माइनस दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एंट्रीज है। मैं उन्हें एंट्रीज को हटा देता हूँ। अभी हम चेक करेंगे अपनी रिपोर्ट, तो प्रॉपर हमें रिपोर्ट दिखाएगा कितना हमारे पास स्टॉक अभी अवेलेबल है। यहाँ पे F12 करेंगे, इनवर्ड, आउटवर्ड और ओपनिंग बैलेंस को हम यस कर लेंगे। अभी आप देखिए रॉ मटेरियल हमने 500 मीटर हर एक का लिया था। दुपट्टा 500 मीटर, कुर्ती और सलवार ये सारे 500 मीटर का हमने ले रखा था, परचेज किया है, वो हमारे स्टॉक में दिख रहा है। अभी हम जाएंगे फिनिश गुड। जो हमारा फिनिश गुड है उसमें क्या होता है कि जो हमारा लेडी सूट है उसमें ये सारे रॉ मटेरियल किस क्वांटिटी में लगते हैं वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे अल्ट्रा मोड में। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है इसलिए मुझे अल्ट्रा मोड में जाना है, वरना मैं क्रिएट मोड में जाऊंगा। स्टॉक आइटम, अभी जो हमारा जो फिनिश गुड है वो है लेडी सूट। लेडी सूट पे क्लिक करेंगे और उसको फिनिश गुड में रख रखा है मैंने, और उसकी जो यूनिट है वो पीसेस। अभी क्या है, जब आप यहाँ पे क्रिएट करने जाओगे तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है एडिशनल डिटेल, अल्टर कंपोनेंट्स, बिल ऑफ मटेरियल, ये आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको करना है F12। यहाँ पे F12 करेंगे तो यहाँ पे ये फीचर ओपन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्वेंट्री डिटेल में सेट कंपोनेंट लिस्ट, बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, ये यहाँ पे नो रहेगा। ये आपको यस करना है। ये यस करके जैसे आप ये विंडो को सेव करेंगे ये ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करना है। अभी क्या है, यहाँ पे हमें एक नाम पूछता है, नेम ऑफ बॉम्ब। एक्चुअली क्या हो सकता है कि आपका जो ये स्टॉक है लेडी सूट वो साइज वाइज भी अलग अलग हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप अलग अलग बॉम्ब यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ बॉम्ब का नाम दिया है, सिर्फ मैंने बॉम्ब ही दे रखा है। इस बॉम्ब को यस करेंगे। अभी यहाँ पे वो हमसे पूछा है कि एक यूनिट जो हमारा लेडी सूट है वो एक यूनिट बनने के लिए क्या रॉ मटेरियल और किस क्वांटिटी में लग रहे हैं, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रखा है मैंने। दुपट्टा जो लग रहा है वो एक सूट को बनाने में 2.5 मीटर का दुपट्टा उसमें लगता है। दूसरा क्या है, कुर्ती जो है वो 2 मीटर के कपड़े में बनती है, और सलवार जो है 2.5 मीटर, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ये डिफाइन जो मैंने कर रखा है ये अभी हमें यूज होगा जब हम मटेरियल आउट करेंगे। जब हम जॉब वर्कर को ऑर्डर देंगे तो हमें वहां पे भी ये चीजें ट्रैक हो जाएंगी, जिससे कि वो सामने वाले को जब हम वो ऑर्डर देंगे तो उसको क्लियर रहेगा कि अगर ये ऑर्डर हमारा सूट का बनने के लिए आया है तो इस सूट में जो रॉ मटेरियल लगेगा, क्या रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में लगने वाला है। ये विंडो हम सेव करके जाएंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है जॉब वर्क ऑर्डर। अब मैं जा रहा हूँ जॉब वर्क ऑर्डर देने, क्योंकि क्या है कि अभी जो है हमारे पास मटेरियल तो आ गया रॉ मटेरियल, अभी हमें जॉब वर्क को ऑर्डर देना है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑर्डर देती हैं बट अपना रॉ मटेरियल नहीं देती। बेसिकली वो क्या कहती हैं कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो आप अपना ही रॉ मटेरियल परचेज करके खुद बनाइए,
और हमें वो प्रोडक्ट दे दीजिए। लेकिन अभी जो हम टैली में देखने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि जो कंपनी है उसने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर के साथ साथ अपना रॉ मटेरियल भी देती है उन्हें, और वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करके कंपनी को रिटर्न करते हैं। तो हम चलते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर में जाएंगे। जब हम वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी यूजर्स क्या करते हैं कि वो जॉब वर्क यूज नहीं करते हैं, तो उनका जॉब वर्क जो है प्रोसेस वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसको हम सबसे पहले वहां पे जाके एप्लीकेबल करते हैं। अब अदर वाउचर में जाओगे, अदर वाउचर में जाके सो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिएगा। सो इनएक्टिव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जॉब वर्क आउट ऑर्डर दिखेगा, उसको आप एंटर कीजिएगा, वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन क्यों हो गया? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इन केस अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है वहां पे जाने के बाद भी, तो आप अल्ट्रा मोड पे जाइएगा, वाउचर टाइप को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे जॉब वर्क ऑर्डर इनएक्टिव में जाइएगा, यहाँ पे जॉब वर्क आउट ऑर्डर सेलेक्ट होगा, मैंने ऑलरेडी एक्टिव कर रखा है इसलिए दिख रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिव दिस वाउचर टाइप, अगर ये यस है तो आपको वाउचर की जब एंट्री करने जाओगे वहां पे आपको शो करेगा, अगर ये नो है तो आपको इसको यस करना पड़ेगा, उसके बाद शो करेगा। ये विंडो वहां से भी ओपन हो जाएगी इन केस अगर ये आपने पहले से एक्टिव नहीं कर रखा है तब। ये ऑलरेडी मैंने यस कर रखा है इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ और उसके बाद वाउचर में जाते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर देते हैं जॉब वर्क आउट ऑर्डर। इस ऑर्डर को मैं दे रहा हूँ, मैंने एक पार्टी बना रखी है जॉब वर्कर को मैंने सेंडर क्रेडिटर में रख रखा है। यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करने के बाद अभी आप आओगे तो एक डिस्पैच की डिटेल है, उसके बाद प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, इसमें हमें बताना है कि ड्यूरेशन कितने दिन का लगेगा अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं। देन उसके बाद नेचर ऑफ प्रोसेस, आप यहाँ पे जो भी नेचर ऑफ प्रोसेस दिखेंगे वो आपको अभी बिल पे प्रिंट पे दिखेगा, ये सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद इस विंडो को आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद पार्टी की डिटेल जो हमने जॉब वर्कर का पार्टी क्रिएट कर रखा है उसकी सारी डिटेल जो हमने लेजर क्रिएट के टाइम दे रखी है वो यहाँ पे हमें शो करेगी। देन ऑर्डर नंबर, आप अपने अकॉर्डिंग भी ऑर्डर नंबर रख सकते हैं यहाँ पे, नटाइली और 1 2 3 जो भी ऑर्डर नंबर होता है उसी को लेके आ जाता है ऑर्डर नंबर में। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम ये पूछा है कि हम क्या बनाने के लिए दे रहे हैं, तो जो हम अभी बनाने के लिए दे रहे हैं वो है लेडी शूज। कंपोनेंट को ट्रैक करना है वो यस रखेंगे हम। यहाँ पे गो डाउन, अभी मैंने ए नहीं कर रखा है। अभी क्वांटिटी में मैंने दे दिया 200 पीस। 200 पीस देते ही वो जो हमने अभी स्टॉक आइटम फिनिश गुड का स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम जो भी हमने उसका बिल ऑफ मटेरियल में ले जाके सेलेक्ट कर रखा था कि इस स्टॉक आइटम को कनेक्ट करने के लिए ये रॉ मटेरियल इतनी क्वांटिटी में लगेगा, वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे हमें दुपट्टा दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा पेंडिंग टू इशू दिख रहा है, यहाँ पे ड्यू ऑन दिख रहा है, किस डेट को ड्यू ऑन होगा। और गो डाउन हम यहाँ पे लेंगे मेल लोकेशन, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो मेल लोकेशन हमने परचेज कर रखा हो, मेल लोकेशन से ही जाएगा। सेम हमने मेल लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ये हो गया। बेसिकली हमने उनको ऑर्डर दिया। और यहाँ पे रेट, एक्चुअली जो रॉ मटेरियल था हमारा, रॉ मटेरियल का जो रेट है वो अगर आप देखेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 150 के अकॉर्डिंग ये टोटल यहाँ पे रेट हो रहा है। और जो उसका सर्विस चार्ज वगैरह लेके हम उसमें ऐड करके यहाँ पे इसका प्रॉपर रेट दे सकते हैं। 250 जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। हम इसका प्रिंट देख लेते हैं। अभी जब भी हम ये ऑर्डर, ये क्या है कि ये ऑर्डर की एक कॉपी है जो उसके हमारे जॉब वर्कर के पास जाती है। तो आप देखिएगा कि जो हमने दिया था उसको ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस वो भी यहाँ पे दिख रहा है। नेचर ऑफ प्रोसेसिंग हमने वहाँ पे टाइप नहीं किया था इसलिए वहाँ पे नहीं दिख रहा, जिससे कि सामने वाले को क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल आया है इसमें क्या क्या काम करके हमें ये चीज बनाना है, क्या प्रोसेस हमें मेंटेन करना है। और आप नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में तो उसमें दिखा रहा है लेडी सूट क्या है कि उन्हें बनाना है, और उसका जो कॉम्पोनेंट है वो भी उनको बिल पे मिल जाएगा कि ये कॉम्पोनेंट उसमें लगने वाला, मतलब ये रॉ मटेरियल उसमें लग के ये चीजें बनने वाली है, जिससे कि सामने वाले जॉब वर्कर को प्रॉपर क्लियर हो जाता है कि क्या चीजें हमें यहाँ पे लगानी है। ये वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल सामने वाले को नहीं देना है, हमें सिर्फ डायरेक्ट उनको ऑर्डर दिया और हमें बताना है कि ये चीज फिनिश गुड में ये रॉ मटेरियल लगने वाला है। बैक आ जाते हैं, ये वाउचर मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये हो गया, हमारा ऑर्डर चला गया क्लाइंट के पास, जो भी हमारा जॉब वर्कर था उनके पास ऑर्डर चला गया।
अब हमें अपने टैली में देखना है कि ऑर्डर कहाँ पे दिखता है, कैसे दिखता है, क्या है उसका सारा मेथड, वो हम देखेंगे। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके जॉब वर्क रिपोर्ट में जाएंगे, ऑर्डर्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक विंडो दिखेगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जॉब वर्क आउट। जैसे ही आप जॉब वर्क आउट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि ऑर्डर कौन सा है और कितना ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितना आपने बनने के लिए सामने दिया था और कितना अभी बैलेंस क्वांटिटी है। यहाँ पे हम F12 करेंगे। क्लियर जॉब ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर कोई ऑर्डर है जो ऑलरेडी आपने दिया था वो क्लियर हो गया, मतलब आपको उसने पार्टी ने आपको सारा बना के माल दे दिया है, तो वो यहाँ पे आपको यस करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके आप देख सकते हैं जैसे आपको रिपोर्ट चाहिए। ये हमारा ऑर्डर जो हो गया वो जॉब वर्कर के लिए पंच हो गया। अभी क्या है कि हमने ऑर्डर तो दे दिया, अभी क्या है यहाँ पे हम अपना रॉ मटेरियल भी उसको देते हैं। सामने वाला जो हमारा पार्टी है, जो भी हमारा जॉब वर्कर है, वो क्या करता है कि रॉ मटेरियल भी हमसे लेता है और उस चीज को अपना जो भी मैन पावर लगा के रेडी करके हमें रिटर्न कर देता है, और जो उसका जॉब वर्क का जो भी चार्जेस होता है वो हमसे एडिशनल ले लेता है अपने लिए। तो नेक्स्ट हम जाएंगे गेट ऑफ टैली पे वापस आके वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मटेरियल आउट। अभी तो हमने ऑर्डर दिया मटेरियल आउट। अदर्स वाउचर में जाएंगे। अदर वाउचर में जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मटेरियल आउट। अभी क्या है, मटेरियल आउट जो है, मटेरियल आउट में भी क्या है कि एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये भी आपका ऑन नहीं होगा। उसके लिए भी आपको, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी, जब आपका ऑन नहीं होगा तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन देगा कि इस वाउचर को एक्टिव करना है या नहीं। लेकिन अभी मैंने ऑलरेडी एक्टिव कर रखा है तो मैं जा रहा हूँ अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप, यहाँ पे मटेरियल आउट। मटेरियल आउट में क्या होगा, ये ऑप्शन आपको यस करना है, एक्टिव दिस वाउचर टाइप। यस करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो वो पूछेगा कि इस वाउचर को यूज फॉर जॉब वर्क के लिए यूज करना है या नहीं करना है। तो अभी हम जॉब वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको जॉब वर्क के लिए यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि इस वाउचर का यूज आप अपने अकॉर्डिंग, कंपनी अपने अकॉर्डिंग एडिशनल चीजों में भी यूज कर सकती है मटेरियल आउट के लिए। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ जॉब वर्क के लिए यूज करें, इसलिए हमने इसको जॉब वर्क का ऑप्शन यस कर दिया है। दोबारा हम गेटवे ऑफ टैली पे आके वाउचर पास करने जाएंगे। वाउचर में गए, हमने यहाँ पे मटेरियल आउट करना है, तो हम सबसे पहले उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने ऑर्डर दिया है। पार्टी को सेलेक्ट करते ही वो लिस्ट ऑफ ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर हमने उस पार्टी को दे रखा है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही जितनी भी डिटेल आपने ऑर्डर के टाइम फिल कर रखी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। और आप यहाँ पे देखेंगे डेट एंड टाइम, इशू का डेट और टाइम भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये टाइम बेसिकली क्या है कि जो आपका अभी सिस्टम का टाइम है वो ले रहा है, और जो डेट है वो क्या लेता है, बिल का डेट, वाउचर डेट बेसिकली कह सकते हैं। इसको सेव कर देंगे हम। और नेक्स्ट ये पार्टी की डिटेल पूछा है, पार्टी की डिटेल को भी सेव करके अभी आप आओगे तो यहाँ पूछेगा डेस्टिनेशन गोडाउन। डेस्टिनेशन गोडाउन बेसिकली वो होता है जहाँ पे हमें माल भेजना है। तो अभी जो हम अपना रॉ मटेरियल है वो भेज रहे हैं जॉब वर्कर के पास, तो हम यहाँ पे जॉब वर्कर का गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन का यूज कर रखा है हमने। मेन लोकेशन जो है हमारे लिए यूज हो रहा है, फिनिश गुड है जो हमारा माल बंद करके, जो हमारा स्टॉक बंद किया आता है वो हमारा वहाँ जहाँ से सेल होता है उसके लिए, और जो जॉब वर्कर गोडाउन है वो है उस पार्टिकुलर पर्सन के लिए जो हमारा जॉब वर्क का काम करता है, बेसिकली जो हमारा टेलर है, जो हमारे सिल के ये देता है। तो यहाँ पे हमने जॉब वर्क गोडाउन का सेलेक्ट कर रखा है। ये हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो भी दुपट्टा, कुर्ती, सलवार, ये हम सारी चीजें उसको मटेरियल भेज रहे हैं अभी। तो ये जैसे हमने जॉब वर्क का वहाँ पे सेलेक्ट किया था ऑर्डर को, सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल आ गई है क्योंकि हमने ऑर्डर उसके दे रखा है कि ये चीजें लगनी है। इस विंडो को हम सेव कर देंगे कंट्रोल ए करके। और अगर इसको प्रिंट भी हम देख लेते हैं, इसका प्रिंट कैसे आता है, कंट्रोल पी, उसके बाद यहाँ प्रीव्यू। ये है एक चालान का प्रिंट। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप मटेरियल आउट करोगे, जब आप मटेरियल सामने भेजोगे उसके साथ, तो वो चालान एक लगता है जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक रॉ मटेरियल जो है उसके नीचे लिखा है कि क्या चीज बनने का, मतलब उससे क्या चीज बनेगा, किस चीज का वो कंपोनेंट है, किस चीज का वो रॉ मटेरियल है, किस फिनिश गुड का रॉ मटेरियल है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि लेडी सूट का रॉ मटेरियल है दुपट्टा, कुर्ती भी लेडी सूट का है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल पे मिल जाएगी। बैक आ जाते हैं और इस वाउचर को सेव कर देते हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट देख लेते हैं कि हमारा रिपोर्ट क्या दिखा रहा है मटेरियल आउट का, क्या हमारा स्टॉक कैसे है, क्या कहाँ पे क्या है, स्टॉक समरी, ये सारी चीजें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मटेरियल आउट का वाउचर कहाँ दिखता है, जो हमने दिया है, इस पे रिपोर्ट कहाँ दिखती है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, जॉब रिपोर्ट में जाएंगे,
यहाँ पे रजिस्टर दिख रहे हैं। सबसे पहला जो था यहाँ पे देखिए मटेरियल वर्क ऑर्डर इनका था, और दूसरा आउट ऑर्डर। आउट ऑर्डर का जो हमने ऑर्डर पास किया था वो दिखेगा। थर्ड जो है मटेरियल आउट, यहाँ पे हमें दिख रहा है रजिस्टर में कि क्या मटेरियल हमने आउट कर रखा है और किस क्वांटिटी में। और यहाँ पे एक और रिपोर्ट और है जो कि है मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट ओपन होगी, वो हमें प्रॉपर रिपोर्ट दिखाएगी कि जो भी गुड्स हैं कितनी क्वांटिटी में और किस पर्सन को भेजा गया है। अभी मैंने जॉब वर्कर के नाम से ही बना रखा है, इसलिए यहाँ पे जॉब वर्कर ही दिख रहा है। अभी क्या है कि नेचर ऑफ प्रोसेस हमने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, इसलिए नहीं दिख रहा है। गुड्स रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर, ये अभी आपको ये रिपोर्ट अभी ब्लैंक दिख रही है। अभी जब हम मटेरियल उससे जॉब वर्कर से इन करेंगे तो रिपोर्ट हमें यहाँ पे प्रॉपर दिखेगी कहाँ पे क्या चीजें हैं। बैक आते हैं, हम एक बार स्टॉक का देख लेते हैं कि हमारा स्टॉक क्या दिखा रहा है, क्या हमारा मटेरियल आउट हुआ है कि नहीं। हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स में। ये बेसिकली इसके लिए गेट टू एफ टैली पे जब आप रहोगे तो डिस्प्ले मोड पे, डिस्प्ले मोड से इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री बुक से गो डाउन। आप गो डाउन वाइज भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अभी क्या है कि हमें सारे गो डाउन का एक साथ देखना है, कोई भी हमें इंडिविजुअल नहीं देखना। तो यहाँ पे आप प्राइमरी सेलेक्ट करोगे, F12 करोगे, यहाँ पे ओपनिंग इनवर्ड सारी चीजें यस, ओपनिंग इनवर्ड आउटवर्ड यस करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल और लेवल तक को आपका अगर देखना है कि कितने रॉ मटेरियल तक, क्योंकि इसमें ग्रुप भी बने हैं तो ग्रुप के अंदर भी रॉ मटेरियल कितना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। वो जितने भी लेवल हैं ग्रुप के वो सबसे लास्ट तक ले जाके आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा जो रॉ मटेरियल था, मेन लोकेशन की हम बात करते हैं क्योंकि हमने अभी मटेरियल जो परचेज किया था वो मेन लोकेशन में था। मेन लोकेशन में जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, दुपट्टा था, कुर्ती था, सलवार, अभी आप देखो वो हमारा यहाँ पे आउटवर्ड हो गया, माइनस हो चुका है। इनवर्ड में हमारा 500 मीटर था, आउटवर्ड में हमारा 500 मीटर, क्योंकि जो हमने क्वांटिटी 200 दिया है उसके अकॉर्डिंग ही उसने कैलकुलेट किया कि हमारा 500 मीटर ही उसमें लगना था। अभी देखिए आप कुर्ती 500 मीटर थी, ये जो हमारा था 400 मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर ही हमने दे रखा था। जो कुर्ती का क्वांटिटी है एक शूट बनने में 2 मीटर लगता था, इसलिए उसने उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 400 मीटर को आउट किया है, मतलब मटेरियल किया है, और 100 मीटर अभी इसका रिमेनिंग है। अब हम देखते हैं जॉब वर्कर का गोडाउन। जॉब वर्कर के गोडाउन में जब हम देखते हैं तो ये मटेरियल इन हो गया। इनवर्ड मतलब मटेरियल जब हमने भेजा मेन लोकेशन से वो गया है किसमें, जॉब वर्कर गोडाउन में। तो वहां पे हमें दिखाने लगा कि जॉब वर्कर गोडाउन में ये मटेरियल आ चुका है, जिससे हमारा स्टॉक भी टैली हो जाता है कि हमारा स्टॉक जो हमने परचेज किया था, जब हमने आउट किया, कितना रिमेनिंग है हमारे पास, कितना क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है और कितना अभी है। और हमारा जो जॉब वर्कर का गोडाउन है वहां पे हमें दिख रहा है कि जो मटेरियल हमने आउट किया वो मटेरियल जॉब वर्कर का गोडाउन है, मतलब हमारे जो थर्ड पर्सन है जिससे हमें काम कर, जो हमारा शूट रेडी करेगा, उसके पास हमारा इतना रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोसेस आता है, क्या करता है जो टेलर है उसने सारा स्टॉक शूट सिल के अब हमें वापस करता है। जितना स्टॉक आज तक उसने सेल रखा वो हमें वापस कर, मतलब वापस इन द सेंस हमें बना के रेडी फिनिश गुड बना के हमें दे देता है। उसके लिए जो एंट्री पास होगी वो होगी मटेरियल इन की। सेम वाउचर में जाएंगे, अदर्स वाउचर में यहाँ पे मटेरियल इन सेलेक्ट करेंगे। मटेरियल इन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हम पार्टी जॉब वर्कर, अभी आप देखो यहाँ पे ऑर्डर ट्रैक हो जाएगा। ऑर्डर को हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे, सेम एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट विंडो आपकी पार्टी की डिटेल की ओपन होगी, वो भी हम कंट्रोल करके सेव कर देंगे। यहाँ पे पूछेगा कंजप्शन गोडाउन, मतलब किस गोडाउन से कंजप्ट हो रहा है। अभी ये कंजम्पशन क्यों पूछा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, कंजम्पशन डिटेल यस कर रखी है। कंजम्पशन डिटेल क्यों यस कर रखी है, क्योंकि जब हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारा पड़ा है थर्ड पार्टी के गोडाउन में, थर्ड पार्टी के गोडाउन से जब हम फिनिश गुड वापस ले रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे अभी कंजम्पशन नहीं दिखाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो जो रॉ मटेरियल गया है वहां पे वो उसको क्लोजिंग बैलेंस में दिखाता है, मतलब वहां पे वो स्टॉक उसका खड़ा ही रहेगा, वहां पे माइनस ही नहीं दिखाएगा उस गोडाउन में, जॉब वर्कर के गोडाउन में। इसलिए हमने यहाँ पे कंजम्पशन डिटेल को यस कर रखा है। कंजम्पशन डिटेल कंजम्पशन गोडाउन वो पूछ रहा है, वो जो गोडाउन है जो हमारा रॉ मटेरियल कंजप्ट हो रहा है वो होगा जॉब वर्क गोडाउन में। जॉब वर्क गोडाउन को सेलेक्ट करते ही जो हमने जो चीज बनने के लिए ऑर्डर दिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। लेडीज सूट बॉम्ब यहाँ पे पूछा कौन से बॉम्ब नेम से आप सेलेक्ट करना चाहते हो, बॉम्ब हमने दे रखा है यहाँ पे। गोडाउन फिनिश गुड में माल आना है, और अभी क्या करना है कि हम क्वांटिटी 100 दे रहे हैं। 200 का हमने ऑर्डर दिया था लेकिन उसने 100 ही बना रखा है। 100 क्वांटिटी हमने यहाँ पे इन कर लिया अपने पास, और इसका प्रिंट भी देख लेते हैं पहले। ये प्रिंट बेस के लिए आ जाएगा आपके पास मटेरियल इनका।
बैक आ जाते हैं, हम इस वाउचर को सेव कर देते हैं। अभी इस वाउचर को बनाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक क्या दिखा रहा है, ऑर्डर में क्या था और कितना पेंडिंग है, और जो हमारा मूवमेंट की रिपोर्ट थी वो भी हम देख लेते हैं कि स्टॉक मूवमेंट में क्या दिखा रहा है। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद जॉब वर्क रिपोर्ट में ऑर्डर में देख लेते हैं क्या दिखा रहा है हमें। अभी आप देखिए, अभी जो ऑर्डर, जब हमने ऑर्डर दिया था तो हमारी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, 200। अभी हमारा बैलेंस क्वांटिटी दिखा रहा है 100, क्योंकि जो जॉब वर्कर था उसने हमें सिर्फ 100 पीस दिया है और हमें अभी 100 पीस और भी उससे लेना है, जिससे हमारा इस एंट्री को प्रॉपर मेंटेन करने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा स्टॉक कहीं भी बेसिकली मतलब उसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि हमारे किसी भी स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा हमें। यहाँ पे हर चीज हमारी ट्रैक हो जाएगी, कितना ऑर्डर हमने उनको दे रखा था और कितना हमारे पास उनके पास अभी हमारा माल पेंडिंग है, कितने का ऑर्डर हमारा पेंडिंग है, वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो। F12 करेंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि मैंने बताया था क्लियर जॉब, अगर आपका ऑलरेडी कोई जॉब क्लियर है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे यस करके देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे, ऑल्ट F1 करने के बाद ये सारी चीजें दिख जाएंगी, जॉब वर्कर का कितना आपने दे रखा है। इसको एंटर करोगे तो आप इसके अंदर जो भी एंट्रीज है वो सारी आपको ओपन हो जाएंगी। जो आपने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर देने के बाद जो भी आगे के एंट्रीज है वो मटेरियल आउट, मटेरियल इन, वो मैं दूसरी रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ। अभी अब यहाँ पे ये दिखा रहा है इस रिपोर्ट में ऑल्ट्रेशन करने के बाद कि जो ऑर्डर आपने दिया था वो दिया था 200 पीसेस का, और जो हमारे पास रिमेनिंग है वो है 100 पीसेस का बैलेंस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे वो एंट्री दिखा रहा है कि कहाँ किस एंट्री में 200 था, किस एंट्री में 100 होके वो माइनस होके हमें दिखा रहा है। बेसिकली मटेरियल इन की एंट्री भी यहाँ पे दिखा रहा है कि मटेरियल इन के उससे जब हमारे पास 100 क्वांटिटी का आ गया तो 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 बैलेंस हमारे पास बचा है। ये हमारा हो गया ऑर्डर रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर। इसको जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे अभी क्या था, जब तक हमारा मटेरियल इन नहीं हुआ था ये सारी फील्डें ब्लैंक थी। गुड रिसीव्ड फ्रॉम जॉब वर्कर। अभी आप देखिए कि जॉब वर्कर जो हमने ऑर्डर दिया था वो हमने ऑर्डर देते टाइम जो भी मटेरियल आउट किया था वो दुपट्टा था, कुर्ती थी, सलवार। अभी देखिए जो हमारे पास जॉब वर्कर से इन आया वो है लेडीज सूट। लेडीज सूट 100 पीसेस आया है और उसकी सारी डिटेल ज्यादा क्या है, हर एक चीज यहाँ पे आपको एक ही रिपोर्ट में मिल जाएगा। वेस्टेज वगैरह भी आपको मिल जाता है क्योंकि अभी मैंने इसमें मेंटेन नहीं किया, और ना उसकी भी सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि ये जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाएगा कि उस जॉब वर्कर से क्या क्या चीजें हमें आई हैं और क्या क्या चीजें हमने उनको दे रखा था। नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा स्टॉक कैसे टैली हो रहा है। हम जाएंगे, वापस आता हूँ मैं गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक्स, गोडाउन। गोडाउन में हम सिर्फ प्राइमरी करके देख रहे हैं अभी, क्योंकि हमें देखना है सभी गोडाउन का, किस गोडाउन में क्या स्टॉक था, कितना है, कितना माइनस हुआ था, कितना प्लस। यहाँ पे F12 करेंगे, ओपनिंग बैलेंस यस, इनवर्ड, आउटवर्ड, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल में जाएंगे और इसके बाद डिटेल फॉर्मेट को यस करके सेव कर देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने जो जॉब वर्कर का गोडाउन है, यहाँ पे आप देखोगे तो 500 मीटर का इन हुआ था और 250 मीटर का आउट हो गया है। जो हमने मटेरियल इन के टाइम कंजप्शन रिपोर्ट, कंजप्शन ऑप्शन यस कर रखा था, उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। अगर हमने कंजप्शन का ऑप्शन यस नहीं किया होता तो ये जो आउटवर्ड दिख रहा है ये आपको ब्लैंक दिखता है। अभी हमारे पास मटेरियल तो आ जाता है लेकिन उसका कंजप्शन नहीं दिखता, इसलिए वो कंजप्शन का यूज करना जरूरी होता है। अभी आप देखिए फिनिश गुड गोडाउन में हमारे पास 100 पीसेस आ गया। रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पे जॉब वर्कर के पास कंज्यूम हुआ और हमारा 100 पीसेस यहाँ पे आ चुका है। मतलब ये जो स्टॉक आया फिनिश गुड का लेडी सूट, ये हम अब आके सेल कर सकते हैं, वो जो कंपनी ऑपरेशन आगे सेल कर सकता है। और अभी जो हमारा 100 पीसेस का बचा है वो अगर मैं इन कर लेता हूँ, मतलब हमारा जो टेलर था उसने बना रखा है, अब वो दोबारा हमें वो मटेरियल भेज रहा है, तो हम एक और एंट्री पास कर लेते हैं मटेरियल इन की। अभी देखिए पेंडिंग में अभी उसका जो ऑर्डर दिया था उसका सिर्फ 100 आया, 100 अभी पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पे दोबारा वो ऑर्डर आपको ट्रैक करने के लिए दिखाएगा। और जैसे आप यहाँ पे ट्रैक करके ये विंडो सेव करोगे, कंजम्पशन आप यहाँ पे जॉब वर्कर को डाउन, देखिए आपको लेडी शूट जितना भी रॉ मटेरियल वहाँ फिनिश गुड वहाँ पे पेंडिंग है वो ऑलरेडी वहाँ पे दिखा दिया कि अभी हमारे पास सिर्फ 100 पीसेस था। जो ऑर्डर हमने 200 का दिया था 100 में हमने ऑलरेडी रिसीव कर रखा है, 100 जो बचा है वही यहाँ पे आएगा। अभी हम बॉम्ब सेलेक्ट कर लेते हैं, सेमो को डाउन पूछ रहा है, फिनिश गुड में 100 ही आ रहा है क्योंकि हमारा 100 ही वहाँ पे
रिमेनिंग था जो हमने ऑर्डर दे रखा था 200 का, 100 हमने पहले ही ले रखा। एंट्री को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अभी हम एक बार दोबारा ऑर्डर की रिपोर्ट देखेंगे, जो हमने अब देखा था कि हमारे 100 पेंडिंग लिखा रहा था, वहां पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा है। डिस्प्ले मोर, जॉब वर्क रिपोर्ट, ऑर्डर। यहाँ पे हमने जॉब वर्क आउट को सेलेक्ट किया था। अभी आप जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर का जितना भी हमने ऑर्डर दिया था वो हमारे पास स्टॉक आइटम आ चुका है। क्लियर जॉब पे जाएंगे। जैसे आपने क्लियर जॉब को ऑप्शन को यस किया, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन सा ऑर्डर था जो क्लियर हो चुका है। अभी आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑर्डर क्वांटिटी, बट बैलेंस क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है। बैलेंस क्वांटिटी इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो ऑर्डर हमने 200 का दिया था वो हमें रिसीव हो चुका है, इसलिए वो बैलेंस क्वांटिटी नहीं दिखा रहा। और ये जो ऑर्डर है उसके आप हेडिंग देखेंगे तो जॉब वर्क ऑर्डर क्लियर्ड, ये ऑर्डर क्लियर हो चुका है। ऐसे हम टैली में जॉब वर्क का प्रॉपर प्रोसेस मेंटेन कर सकते हैं और अपने स्टॉक को टैली कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रॉपर ट्रैकिंग रहेगा कि हमारा जॉब वर्कर ने क्या बनाया है, हमने कितना ऑर्डर दिया था, कितना रॉ मटेरियल हमने उनको दे रखा है। सो दिस इज how job work on Tally Prime. I hope you all understand and enjoy the session. So I request to Sampada ma'am to continue the session. Yes, thank you, Sahil, and wonderful session. Thank you, Maliha, for your knowledge sharing session. And over to you, Bhagwati sir, for overview. Yeah. So thank you, Sampada and team. So myself is Bhagwati Dhandaria from Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So today is a job work, how to manage the job work out. Okay. So in this, every week we are doing some new, we are taking new features, and we are taking the session for the knowledge sharing purpose of our customers and prospects. So the job work out and job work in is mostly using by the manufacturers. Okay. So now in terms of the job work, what is a job work exactly? So किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम कई स्टेज में प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को काम करने को देते हैं। फिर वो लोग उस काम को करके लेके आते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूंगा तो हम पहले यार्न को लेकर के हम दूसरे स्टेज पे लेके जाते हैं। फिर कलरिंग, ब्लीचिंग, कलरिंग एंड फिनिशिंग, कटिंग एंड मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। ये सभी प्रोसेस अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग अलग कारीगर्स के थ्रू किए जाते हैं। तो इन दैट सिनारियो वो इन्वेंट्री को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उसके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो। और उसके साथ साथ उसका फाइनेंशियल पार्ट भी होता है कि अगर मैंने किसी को मटेरियल, अगर किसी को जॉब वर्क करने को दिया है, तो मटेरियल मेरा कितना मटेरियल मैंने रॉ मटेरियल्स दिया, उसके अगेंस्ट में फिनिश गुड्स कितना आया उसको हमें चेक करना है, या सेमी फिनिश कितना आया, और वो सेमी फिनिश के सामने हमें कितना रुपए का उसको पेमेंट करना है, और कितना रॉ मटेरियल्स मेरा उस पर्टिकुलर जॉब वर्कर के यहाँ पड़ा होगा। तो दिस इज एक्चुअली बिग चैलेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट इन टैली प्राइम दिस इज अ वेरी इजी टू मैनेज दिस सिनेरियो, एंड इन द सेम टाइम यू कैन मैनेज योर इन्वेंट्री। आप अपनी पूरी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाते हैं। सेम टाइम में आप अपने मटेरियल्स को मैनेज कर पाते हैं कि कौन सा मटेरियल किसके पास और कौन से स्टेप पे पड़ा हुआ है। सेम टाइम में आप ये चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मटेरियल हमारा स्टेजेस कहाँ कितना स्टेजेस है और कौन से स्टेजेस पे है। सेम टाइम में आप फाइनेंस पार्ट भी मैनेज कर पाते हैं कि हमें कितना बिल, किसका कितना बिल हमें पेमेंट करना है जॉब वर्कर का, और उसके ऊपर हमें कंप्लायंस की, जहाँ तक मैं बात करूँ तो जीएसटी कितना भरा है और टीडीएस कितने डिडक्शन होने हैं, एवरीथिंग यू कैन मैनेज इन अ सिंगल वन प्लेटफॉर्म। तो ये टैली प्राइम में आप मैनेज कर पाते हैं। सेम वे जब पूरा का पूरा स्टेजेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास जब फिनिश गुड्स आ जाता है तो हम फिनिश गुड्स को हम अपने रेगुलर साइकिल के थ्रू सेल्स ऑर्डर एंड डिलीवरी नोट एंड सेल्स डायरेक्टली हम लोग बेच सकते हैं और हमारी पूरी इन्वेंट्री मैनेज कर पाते हैं।
अगर हम एज ए और हम जॉब वर्कर हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिनेरियो मैंने आपको बताया कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो सेकंड चीज क्या होती है कि हम जॉब वर्कर हैं और मैं जॉब वर्कर हूं और मैंने आप किसी कंपनी का काम लिया है तो मैं उसको एज ए यूज करूंगा जॉब वर्कर इन। सो यहाँ पर मैं इस चीज को भी सेम सिनेरियो में मैनेज कर पाऊंगा कि मैं आज 10 कंपनी का मटेरियल्स परचेज ले रहा हूँ और उसका मैं जॉब वर्क कर रहा हूँ, तो उस किस कंपनी का कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल मेरे पास आया है, कौन सा ऑर्डर मेरे पास है, उसके लिए मुझे क्या क्या प्रोसेसेस करने हैं, उसकी इन्वेंट्री क्या है, कौन से वेयर हाउस में पड़ी है और कितने दिन से पड़ी है, और अगर मैंने उसका फिनिश बना करके दे दिया है, मेरा जॉब वर्क करके दे दिया है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना हो गया जो मुझे सामने कंपनी से लेना है, और मैंने कब कब क्या क्या मटेरियल्स कंपनी को दिया था। ऑल रिकॉर्ड आर इन द सेम इन अ सिंगल वन प्लेटफॉर्म्स। तो ये बोथ वे जॉब वर्क इन, जॉब वर्क आउट, मटेरियल्स इन एंड मटेरियल आउट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। इसके साथ साथ कंप्लीट फाइनेंस पार्ट मैनेज किया जा सकता है। इसके साथ साथ कंप्लीट कंप्लायंस मैनेज किया जा सकता है, लाइक TDS एंड GST। सो मैं आप सभी कस्टमर्स को बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने अगर कभी जॉब वर्क यूज किया है दैट्स गुड, अगर नहीं यूज किया है तो आप एक बार यूज करें, और उसमें कहीं भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो आप हमारी टीम के साथ, हमारे जो भी अकाउंट्स मैनेजर आपके साथ कनेक्टेड है उनके साथ कनेक्ट करें, उनके साथ बात करें, और ये जॉब वर्क इन एंड आउट कैसे होता है उसको आप सेपरेटली हमारे सपोर्ट से इनेबल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और आप अपना मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड साथ साथ फाइनेंस मैनेजमेंट वेरी इजी गोइंग आप अपने टैली प्राइम में ही कर पाते हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपने ये सेशन देखा और अभी इसके बाद में आपको जॉब वर्क यूज करने में चैलेंज आ रही है, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक्स हमने आपको यहाँ पर डाल के रखी है। आप यूट्यूब चैनल्स को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने सेशन कर रहे हैं, जो भी वेबिनार हम कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग सेशन हम लोग कर रहे हैं, उसके वीडियो अपकमिंग टाइम में हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर के भी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और इजी गोइंग आप अपने इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जॉब वर्किंग को। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आपको और भी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं और कोई टॉपिक्स पे, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हर एक छोटी छोटी टॉपिक्स को हम लोगों ने लिया हुआ है, तो वो यूट्यूब चैनल जस्ट लाइक ए लर्निंग मटेरियल्स के हिसाब से, एज ए टैली एकेडमी लर्निंग मटेरियल्स के हिसाब से आप यूज कर पाएंगे, और आप टैली को कंप्लीट छोटे छोटे माइन्यूट फीचर को भी आप यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप ये सब चीज़ों को एडवांटेज ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए, टैली ऑन क्लाउड लाइक दैट, कस्टमाइजेशन सर्विसेज लाइक, और कोई अदर सर्विसेज, लाइसेंसिंग सर्विसेज, एनी टाइप ऑफ सर्विसेज you want, definitely you can connect with your account manager. They are working with you, and you can contact with me directly. My number is also populated in the chat board. आप मुझे भी बात कर सकते हैं, और आप अपने कोई भी इश्यूज या कोई भी रिक्वायरमेंट्स को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और आप एंजॉय कर सकते हैं टेलीग्राम के साथ। So that's it from my side, Samada. You can carry on, please. Yeah, thank you, sir, for your valuable time. These sessions will upload in our YouTube channel, so be connected to our social media channels all, and be connected to our key account managers for any support and any solutions and any requirement. So now we are going to wind up the sessions. So thank you everyone. Thank you Maliha and Sahil for your wonderful session. And thank you to all. Thank you to all participation here, and thank you to new joinees here today's session. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. See you soon again.